السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے اعلان کیا ہے کہ ہائیڈرا جولائی 2024 میں اس کے قیام کے بعد تعمیر کی جانے والی غیر قانونی عمارتوں کو بھی منہدم کرے گی۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں تالابوں کی زمینوں پر کثیر منزلہ عمارتوں کی تعمیر کے بارے میں بڑھتی ہوئی شکایتوں کے پیش نظر یہ اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جولائی 2024 میں ہائیڈرا کے قیام کے بعد تعمیر کی جانے والی عمارتوں یا مکانات کو منہدم کیا جائے گا۔ کمشنر نے کوکٹ پلی کے میسمہ چیرو کے دورے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہائیڈرا کے قیام سے قبل تعمیر کی گئی عمارتوں کو چھوا نہیں جائے گا۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ نئے راشن کارڈز کے لیے حیدرآباد کے عوام کی کثیر تعداد منتظر ہے اور ان کا یہ انتظار جلد ختم ہونے والا ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ سنکرانتی کے بعد اس عمل کا آغاز کیا جائے گا، جس کے بعد امیدوار درخواست دینے کے لیے تیار ہیں۔ حکام کا اندازہ ہے کہ شہر سے تقریباً 1 لاکھ درخواستیں داخل کی جائیں گی۔ اس وقت حیدرآباد ضلع میں 6,39,506 راشن کارڈز ہیں اور شہری سہولتوں کے شعبے کے حکام کا خیال ہے کہ اس میں 15 سے 20% اضافہ ہوگا۔ حیدرآباد کے چیف راشننگ آفیسر کے تحت اس وقت 365 راشن کی دکانات ہیں اور 66 ڈیلرز مخلوع ہیں۔ حکام نے وضاحت کی ہے کہ جب حکومت کی جانب سے اہلیت کی شرائط کا تعین کیا جائے گا تو نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں نئے راشن کارڈز کے تعلق سے آئندہ ہفتے اہم فیصلہ متوقع ہے۔ JD میٹلا کے صنعتی علاقے میں واقع رشک کیمیکل گودام میں زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں آسمان تک بلند ہوتی ہوئی آگ اور دھوئیں کے بادل دیکھے گئے۔ یہ واقعہ مقامی افراد کے لیے شدید مشکلات کا سبب بن گیا، کیونکہ دھوئیں اور آگ کی شدت سے ان کا معمول کا زندگی متاثر ہو رہا۔ آگ بجھانے والے فائر بریگیڈ عملے نے فوری طور پر واقعے کی جگہ پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آگ کی شدت کے باعث امدادی کارروائیاں مشکل ہو رہی، لیکن فائر فائٹرز پوری محنت سے آگ کو قابو کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ آگ کے نتیجے میں علاقے میں شدید دھواں پھیل گیا، جس سے مقامی افراد کی صحت پر منفی اثرات پڑ رہے اور کئی افراد کو فوری طور پر علاقے سے انخلا کرنا پڑا تاکہ وہ زہریلے دھوئیں سے بچ سکے۔ ایمرجنسی خدمات کے تحت متعدد فائر ٹرک موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی۔ فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، لیکن املاک کا نقصان ہو سکتا ہے، جس کی مزید جانچ کی جا رہی۔ مقامی حکام اس آگ کے وجوہات کی تحقیقات کر رہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ کیمیکل کے رساؤ یا برقی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے 813ویں عرس مبارک حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کے ضمن میں نامپلی ریلوے اسٹیشن سے خصوصی ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ تمام مجلسی نامپلی کارپوریٹر، سابق شہری کوآپشن ممبر، مجلسی نامپلی ٹیم اور خیر خواہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ بعد ازاں نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کی وہاں پر گلپوشی بھی کی گئی۔
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में हैदराबाद वाटर बोर्ड के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी और सीनियर ओहदेदार मौजूद रहे। इस दौरान आइंदा मौसम गर्मा को मद्देनजर रखते हुए मीठे पानी की फराहमी के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर बात की गई। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रोपोलिस में सार्फिन को ताज़ा पानी के मुयस्सर फराहमी के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश में कुछ शरपसंदों ने भवानीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कुमारी पालम सेंटर में कोटैया वेदी में घरों के बाहर खड़ी 5 बाइकों को आग लगा दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मामले की तफ्तीश कर रही, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि विजयवाड़ा में सीसीटीवी में एक बदमाश भवानीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुमारी पालम सेंटर में कोटैया वेदी में घरों के बाहर खड़ी बाइकों को आग लगा रहा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करते हुए केस की तहकीकात कर रही। कर्नाटक के रिहायशियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों और दूध की कीमतों में आने वाले इजाफे से अपने घरेलू बजट को दोहरा धचका लगा है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने 14 जनवरी को संक्रांति के बाद दूध की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर इजाफा करने के मंसूबे का ऐलान किया है। गुज़िश्ता साल जून में लागू किए गए 2 रुपए फी लीटर इजाफे के बरअक्स इस इजाफे में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ये तजवीज 15 दूध यूनियनों के मुतालिबात से आई है, जो किसानों की मदद के लिए 5 रुपए फी लीटर के इजाफे की वकालत कर रहे। ताहम इस इक़दाम से सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बस टिकट की कीमतों में इजाफा किया है, जिससे ऑटो किरायों में मुमकिना इजाफे पर तशवीश पाई जाती है। कर्नाटक ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए 5 रुपए फी किलोमीटर इजाफे का मुतालबा किया। 2021 में किराया पर आखिरी नजरसानी में 2 रुपए का मामूली इजाफा देखा गया, जिसके बारे में ड्राइवरों का कहना है कि अब ये उनके बढ़ते हुए अखराजात को पूरा करने के लिए नाकाफी है। ऑटो ड्राइवरों को भी रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सर्विसेज से सख्त मुकाबले का सामना है। ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने हाल ही में किराए में फौरी इजाफे के लिए दबाव डालने के लिए एक मीटिंग की, जिसमें उनकी रोजी रोटी को खतरे में डालने वाले माली चैलेंजों पर जोर दिया गया। इन इजाफे के मिले जुले असरात से आम लोगों पर दबाव पड़ने का खदशा है, जो पहले से ही ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों से नबर्द आजमा है। राष्ट्रपति भवन में ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत और महकमे सखाफत के साथ मिलकर हैदराबाद के बोलारा में वाक़े राष्ट्रपति निलय में अवधियान उत्सव के नाम से फूलों और हार्टिकल्चर का एक मेला मुनक्किद किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से ज्वाइंट सेक्रेटरी सैमुअल प्रवीण कुमार ने कहा है कि इस 12 रोजा त्यौहार के जरिए कुदरती तनू और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में बागबानी के रोल के बारे में बेदारी पैदा की जाएगी। तरक्की पसंद किसान चिंतापल्ली सुरेश ने मौज़ूआती स्टॉल्स का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। इस फेस्टिवल के तहत तकरीबन 50 मौज़ूआती स्टॉल्स कायम किए गए हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। राष्ट्रपति निलायम की मैनेजर रजनी ने बताया कि इस फेस्टिवल में दाखिला मुफ्त होगा। ये मेला इस महीने की 13 तारीख तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। नए साल के तीसरे दिन दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में शदीद कोहरे के साथ शुरू हुआ। दिल्ली में सीजन का सबसे ज्यादा कोहरा देखा गया, जिससे सड़कों, दरख्तों और दीगर मनाजिर का नजारा मुमकिन नहीं रहा। हाईवेज पर कोहरे की शिद्दत ज्यादा है, जबकि रिहायशी इलाकों में कोहरा निस्बतन कम है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम हो गई है और फ्लाइट्स पर भी मुमकिन असरात का खदशा है। दिल्ली एयरपोर्ट के मुताबिक अगरचे विजिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फ्लाइट्स अपने शेड्यूल के मुताबिक चल रही। ताहा मुसाफिरों को अपनी फ्लाइट के बारे में एयरलाइन से राब्ता रखने की हिदायत की गई। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद कोहरे के साथ कम से कम दर्ज हरारत 8 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेल्सियस से रहने की पेशगोई की। आने वाले दिनों में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है और वीकेंड पर मगरिबी हवाओं के असर से हल्की बारिश की भी तवक्को है, जिसके बाइस दर्ज हरारत में खतरा इजाफा मुमकिन है। हिमाचल प्रदेश में 4 से 7 जनवरी के दरमियान बर्फबारी, जबकि 5 और 6 जनवरी को शदीद बारिश की पेशगोई की गई है।
महकमे मौसमियात की तरफ से 4 जनवरी की शाम से 6 जनवरी की सुबह तक दरमियानी से भारी बर्फबारी की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का राज बरकरार है। श्रीनगर और दीगर मुल्हिका इलाकों में सुबह गहरी धुंध छाई रही, जिससे लोगों को चलने फिरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फजर की अदायगी के लिए मस्जिदों में जाने वाले नमाजियों को सेल फोनों की लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं ड्राइवर हजरात भी सुबह के वक्त हेडलाइट्स ऑन करके ही गाड़ियां चला सके। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ धुंध मध्यम होती गई और रोशनी ने मामूलात जिंदगी को हयात नो बख्शी। महकमे मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक वादी में मौसम आबर आलूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि इसके बाद एक और मगरिबी हवा के ज़र असर 4 जनवरी की शाम से 5 जनवरी की रात देर गए तक वादी के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी, जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना था कि इस दौरान जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि बादशाह 6 जनवरी की दोपहर से मौसम में बेहतरी मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि वादी में 7 जनवरी से 10 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उनका कहना था कि बाद में वादी में 11 और 12 जनवरी को मतला आबर आलूद रहने के साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। महकमे ने एडवाइजरी में सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मशवरा दिया कि वो अहम गुजरगाहों और पहाड़ी इलाकों पर दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज होने और बर्फानी हालात के पेश नजर ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें। उन्होंने कहा कि 4 से 6 जनवरी के दौरान वादी के कुछ पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है। दरअसल वादी के शबाना दर्ज हरारत में कहीं बेहतरी तो कहीं मजीद गिरावट दर्ज हुई है। तंबाकू नोशी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। तंबाकू नोशी से कैंसर का खतरा 20 गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर लोगों को सिगरेट ना पीने का मशवरा देते हैं। यही वजह है कि कई ममालिक में सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। हाल ही में इटली ने सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगा दी है। अब इटली के फैशन कैपिटल कहलाने वाले मिलान में धुआं उड़ाना लोगों के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। यहाँ सिगरेट नोशी पर जुर्माना होगा, लेकिन इटली वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। ऐसे कई ममालिक है जहाँ सिगरेट नौशी पर पाबंदी है। इटली दुनिया का वो मुल्क है जिसके सकाफती विरसे की सबसे ज्यादा तादाद यूनेस्को में शामिल है। इटली का दारुल हुकूमत रोम है, लेकिन मिलान को इटली का फैशन कैपिटल कहा जाता है। ये शहर फैशन के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है। इस शहर में आप अमूमन बहुत से लोगों को हाथों में सिगरेट लिए और अच्छे डिजाइनर सूट पहने घूमते हुए देखेंगे, लेकिन अब ये कम देखा जाएगा क्योंकि इस शहर में अब आउटडोर सिगरेट नौशी पर पाबंदी लगा दी गई। ये पाबंदी नए साल ही 1 जनवरी 2025 से नाफिज हो गई थी। अब मिलान में अगर कोई सिगरेट पीता है, इसके बाद इस पर 40 से 240 यूरो का जुर्माना आयद किया जाएगा। इसका मतलब है कि एक पफ के लिए लोगों को 3,558 से 21,353 हिंदुस्तानी रुपए अदा करने होंगे। चीन वो मुल्क है जो कोरोना वायरस की तबाहकारियों को शायद कभी नहीं भूल पाएगा। अभी चीन कोरोना के दुख से निकल भी नहीं पाया था कि एक और खतरनाक वायरस ने वहां दस्तक दे दी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन के अस्पतालों की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही, जो देखने वालों को खौफजदा कर देती है। हर तरफ मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही। दावा किया जा रहा कि चीन में लोग ह्यूमन मेटानिमोनियो वायरस HMPV और दीगर खतरनाक वायरसेस का शिकार हो रहे। इन वायरसेस में खासतौर पर इन्फ्लुएंजा A और माइकोप्लाज्मा शामिल हैं, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा लोग बीमार हो रहे। HMPV एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे अलामात पैदा करता है। ये वायरस खासतौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर मदाफियती निजाम वाले अफराद को मुतासर करता है, जिसकी वजह से वो शदीद बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इस वायरस से मुतासर होने वाले अफराद में खांसी, बुखार और नाक बंद होने जैसे मसाइल देखे जा रहे। ये वायरस निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों की भी वजह बन सकता है। कहा जा रहा है कि ये वायरस कोरोना की तरह तेजी से फैल रहा। ये मुतासरा शख्स के खांसने या छींकने से फैल सकता है। इसके अलावा मुतासरा सतहों को छूने से भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। HMPV वायरस बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर मदाफियती निजाम वाले अफराद के लिए ज्यादा खतरनाक है। यह वायरस करीबी राब्ते या आलूदा सतहों को छूने से फैलता है। अगरचे ये आमतौर पर सर्दी, जुकाम
जैसे मामूली अलामत पैदा करता है, लेकिन बाज अफराद में ये संगीन पेचीदगियां भी पैदा कर सकता है। HMPV मुख्तलिफ उम्र के अफराद में सांस से मुतल्लिक ऊपर और नीचे दोनों तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। खास तौर पर ये छोटे बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा पाया जाता है। अगर किसी को दमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD या फेफड़ों की दीगर बीमारियों की तारीख हो तो उनके लिए यह वायरस मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। कमजोर मदाफती निजाम वाले अफराद जैसे कीमोथेरेपी के मरीज या आज़ा की पेवंदकारी के बाद सेहतियाब होने वाले अफराद भी ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। ये वायरस खतरनाक तो जरूर है, लेकिन मुनासिब एहतियाती तदाबीर के जरिए इसके फैलाव को रोका जा सकता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।